Dear friends, welcome back to my channel of Literary Art. लिटरेरी आर्ट के मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लास्ट सेशन में हमने क्रिस्टोफर मार्लो के इंट्रोडक्शन देखा था और आज हम उनकी एक ट्रेजेडी स्टडी करने जा रहे हैं, द ट्रेजेडी ऑफ ज्यू ऑफ माल्टा. It is titled like this. So friends, let us begin with the tragedy Jew of Malta by Christopher Marlowe. See, I have given you the cover page of the book of tragedy Jew of Malta, and you can see that. Introduction to the playwright I have already done in the earlier session. So again I shall not repeat it. Straightly we shall see the play and we shall discuss about this. See, I have given you here. So friends, I have given you here already the picture of the rich and popular Jew of Malta. See, the title of the tragedy is also given in the slide and you can see that. The play or the tragedy Jew of Malta actually displays all the trickeries which the protagonist of the play, Barabbas, has played in order to save his wealth by whatever means. He is the follower of Machiavelli, and whatever principles he has followed or whatever morals had been shown in the play are actually the showing the philosophy of Machiavelli. So friends, first of all, we shall see the prologue to the play or tragedy. It is the prologue by Machiavelli, and see, here is the prologue. You can see that I have given you here the copy of the prologue. What is given in the prologue, that is most essential factor, and what is said by Machiavelli: gracious and great, that we so boldly dare, amongst other plays that now in fashion are, to present this, writ many years gone, and in that age thought second unto none. We humbly crave your pardon. We pursue the story of a rich and famous Jew who lived in Malta. You shall find him still in all his projects a sound Machiavel, and that's his character. He that hath passed so many centuries is now come at last to have you your princely years. Grace you him then, you crown the action and renown the pen. So friends, see, the prologue itself says many more things. That means we can understand what can be the theme of the play through the prologue spoken by Machiavelli. So friends, first of all, we have to understand the theme of the play, and then we shall turn towards the characters and the short summary of the tragedy. So friends, first of all, I shall tell you about the philosophy of Machiavelli. Machiavelli had written one book which is titled as The Prince, and he had depicted his own philosophy through the book Prince. See, Niccolo Machiavelli, what ideas he had put forth in the book, that we have to understand. Machiavelli actually is often misunderstood. बहुत बार उन्हें misunderstood किया जाता है on his views of morality. He suggested the double standard of morality because he held the view that politics has its own moral standards. He did not disregard conventional morality and in fact believed that ordinary citizens should abide by ethical conduct. According to him, if the ordinary citizens do not follow morality, then the whole objective of the state
existence would be defeated. It was only the ruler or prince alone could take a departure from conventional morality for the sake of his state. In fact, he suggests that the prince too should follow morals as far as possible and only depart from it when it is absolutely essential. So, friends, on this theme, actually, the whole tragedy of Jew of Malta is based. जीव ऑफ माल्टा ये जो ट्रेजेडी है वो मैकेवली के कुछ प्रिंसिपल्स और फिलोसॉफी जो है उस पे बेस्ड है। और उसमें उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने एक बुक लिखी थी द प्रिंस नाम से, और उसमें उन्होंने जो रूलर है या फिर जो प्रिंस है उसे अपने जो किंगडम है उसे किस प्रकार से चलाना चाहिए उसके लिए कुछ उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स दिए हैं। एक्चुअली दोज आर द प्रिंसिपल्स विच द citizens and the prince should follow or the ruler should follow, and these principles are actually flexible for the ruler. He says that sometimes he must have to follow the morals and sometimes they have to depart, or the prince should depart from these principles if he thinks that his kingdom is in difficulty. अगर आपकी किंगडम को कोई डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है तो उस टाइम उस रूलर को या फिर उस प्रिंस को अपनी जो मॉरल्स है, जो अपनी फिलॉसफी है वो अलग रखनी चाहिए और उस टाइम जो भी स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना हो वो ले सकता है, भले ही वो डिसीजन कोई इमोरल या फिर गैर तरीके से लिया जा सकता हो, तो उसे वो लेना चाहिए जिससे कि वो अपना राज्य बचा सके। तो ये सब बातें उन्होंने यहाँ पे बताई है। उसी के साथ वो कहते हैं कि सिटीजन्स को भी ऐसा कुछ they must have to follow the morals as far as possible, but sometimes they also can secure their own interest. कभी कभी उनको भी अपना जो फायदा है वो देखना चाहिए अगर किसी गैर तरीके से वो कमा सकते हैं तो। और इसमें इस ट्रेजेडी में जो कैरेक्टर है बारबस का वो पूरी तरह से मैकेवली की प्रिंसिपल्स फॉलो करता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई देता है। अगर हम देखें कि अगर उसकी जो प्रॉपर्टी है जो कि जिसमें से कुछ बहुत भारी हिस्सा जो वहां का रूलर लेना चाहता था और ले चुका था, तो उसके टाइम उस टाइम में भी जो बारबस है वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी रिटर्न पाने के लिए जो कुछ भी ट्रिक्स वो इस्तेमाल करता है तो वो सब भी हमें दिखाई देते हैं कि वो दीज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड और द ट्रिक्स वेर बेस्ड ऑन द थॉट्स ऑफ मैकेवली। तो ये सारी जो चीजें हैं उसमें हमें मैकेवली की फिलोसॉफी का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट लगता है। और देखिए यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं, यू कैन सी दिस कैरेक्टर्स। मैकेवली उनका जो प्रोलॉग है यहाँ पे, फिर बारबस द ज्यू ऑफ माल्टा, फर्नेस द गवर्नर ऑफ माल्टा, कैलीमैथ सन टू द ग्रेट सिग्नॉयर, then Don Lodovic, the governor's son, Don Matthias, Ithamor, a Turkish slave, Del Bosco, the Spanish admiral, और फिर जैकोमो है, फिर कुछ और भी कैरेक्टर्स है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया है जो मेन कैरेक्टर्स है उनका। Barabbas, the wealthy Jewish merchant and protagonist of the play, he is greedy and scheming and plots revenge after Furnace to take his estate back. Abigail is Barabbas' daughter who is in love with Matthias and she converts to Christianity, but some say it was more for political reasons than religious ones. Furnace is the governor of Malta. Don Lodovic, Furnace's son, who is in love with Abigail. Then Don Matthias, Lodovic's friend, who is in love with Abigail. Catherine is Matthias' mother, who is anti-Semitic and vengeful. Then Ithamor है एक कैरेक्टर, वो टर्किश स्लेव है
brought by Barabbas to help him with his plans. फ्रायर जैकोमो है. जैकोमो जो है वो एक फ्रायर है और उसे भी उसका भी मर्डर यहाँ पे हमें दिखता है कि बराबस ने कर दिया है. तो फ्रायर बर्नार्डाइन, ये दो फ्रायर्स है यहाँ पे, जैकोमो और बर्नार्डाइन. मार्टिन डेल बॉस्को और बेलामीरा एक कर्टिसन है who seduces Ithamor for his master's wealth. So friends, let us see. I have provided you here the uh, image of Malta. You might like that. So short summary of the play I shall give you here. I shall summarize the whole tragedy, and then we shall study the themes of the tragedy. The play actually opens with a prologue narrated by Machiavelli, और this prologue जो है वो prologue जो है that explains that he is presenting the tragedy of a Jew who has become rich by following Machiavelli's teachings. मैंने यहाँ पे आपको कुछ फिलोसॉफी जो है मैकियावेली की वो बता दी है, और उस फिलोसॉफी को फॉलो करते हुए ही बराबस ने क्या किया है, अपनी बहुत सी प्रॉपर्टी जमा की है, या फिर जो फर्नेज ने उसकी प्रॉपर्टी मांगी थी इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, तो वो ले चुका था, लेकिन उसको वापस पाने के लिए जो भी ट्रिक्स बराबस ने प्ले की थी उसमें बहुत सी फिलोसॉफी और टीचिंग्स बराबस ने मैकियावेली की ही फॉलो की थी. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस ट्रेजेडी में 5 एक्ट्स है. दिस ट्रेजेडी कंटेन्स 5 एक्ट्स. इट इज ऑफ 5 एक्ट्स and Barabbas is the main character. He is the Jew merchant, and देखिए he had just returned from his ships from the east, and he discovers that they have safely docked in Malta. माल्टा में वो पहुंच चुके हैं, और वहां पे आते ही माल्टा का जो गवर्नर है ये फर्नेस, वो क्या कहता है उनको कि वो कहता है कि ये जितने भी ज्यूज आए हुए हैं उन्हें अपनी 50% जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी. दे मस्ट हैव टू forfeit half of their property or estate to help the government to pay a tribute to the Turks. And when Barabbas protests at this unfair treatment, the governor फर्नेस, वो जो फर्नेस है गवर्नर माल्टा का, वो क्या करता है, उनकी प्रॉपर्टी छीन लेता है. Barabbas's wealth, and he confiscates Barabbas's wealth and decides to turn Barabbas's house into a convent. कॉन्वेंट में बदल दिया जाता है बराबस का हाउस, और उसकी जो आधी प्रॉपर्टी है वो ले ली जाती है. तो अभी बराबस जो है he was mentally very unstable, बहुत ही अस्वस्थ हो चुका है वो मानसिक रूप से, और अब क्या करना चाहिए जिससे कि वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी फिर से पा सके. तो वो क्या करता है, यहाँ पे he plays one trick. He has a daughter, very beautiful innocent daughter, एबिगेल. एबिगेल नाम से उसकी एक जो डॉटर है जो कि यंग है, उसे वो कॉन्वेंट में एक नन बना के भेजता है. Abigail pretends to convert to Christianity in order to enter the convent, and she smuggles out her father's gold at night. तो इतना बड़ा क्राइम वो कर चुकी है वहां पे. और इसी बीच क्या होता है कि फर्नेस मीट्स डेल बॉस्को, द स्पेनिश वाइस एडमिरल, who wishes to sell Turkish slaves into the market. And Del Bosco convinces Furness to break his alliance with Turks in return for Spanish protection. Spanish protection अगर फर्नेस को पाना है माल्टा के लिए, तो उसे अपनी जो अलायंस है टर्क्स के साथ, तो उसे तोड़ना होगा, ऐसा डेल बॉस्को फर्नेस को कहता है. और while weaving the slaves, Barabbas meets up with the Farnese's Lodovic. लोडोविक का जो
लोडोविक जो है फर्नेस का स्लेव, तो उसे वो मिलता है बराबस यहाँ पे। और दिस मैन हैज हर्ड ऑफ अबिगेल्स ग्रेट ब्यूटी। लोडोविक ने एबिगेल की जो ब्यूटी थी उसके बारे में बहुत सुन चुका था, और वो उसकी तरफ बहुत ही अट्रैक्ट हो चुका था। एंड दिस थिंग हैड बीन रियलाइज्ड बाय Barabbas. Barabbas realizes that he can use Lodovic to exact revenge on Furnace, and so he dupes the young man into thinking Abigail will marry him. यहाँ पे जो फादर है बारेबस, वो यहाँ पे एक ट्रिक प्ले करता है, और उसमें क्या करता है, अब ये अबिगेल जो है, जो कि डॉटर है बारेबस की, बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसकी तरफ ये लोडोविक अट्रैक्ट हो चुका है, लेकिन शी इज इन लव विथ मथियास। ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि शी इज इन लव विथ मथियास, एंड ये बारेबस जो है उसे कहता है कि मैं आपके जो गठबंधन है, वो मेरी जो डॉटर है बहुत ही ब्यूटीफुल एबिगेल है, तो उसके साथ कर दूंगा, या फिर यू कैन मैरी हर। तो इन दोनों में अब क्या करता है वो, उसे तो पता है कि एबिगेल लव्स मथियास एंड लोडोविक इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एबिगेल, तो उन दोनों को यहाँ पे वो लड़वाता है। और इनका जो ड्यूएल होता है, उस ड्यूएल में बराबस का जो इंटेंशन है कि इन दोनों को मरवाना है, एक तो लोडोविक और दूसरा मथियास, ये दोनों में ड्यूएल करवाता है और ये दोनों मर जाते हैं। इसमें बात हमें यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है, वी हैव टू कंसिडर वन फैक्ट दैट Barabbas is very selfish. He was knowing that Abigail is loving to Matthias, and then also he evoked Matthias to have the duel or to play the duel with Lodovic, and in that duel both killed each other. So ये जो बात है वो कहीं ना कहीं पे एबिगेल के मन को बहुत ही हर्ट करती है, और इसीलिए वो बहुत ही दुखी हो जाती है। शी थिंक्स दैट हर लाइफ इज मीनिंगलेस नाउ। व्हाई? बिकॉज द पर्सन टू होम शी लव्ड इज डाइड। और अब क्या करें? तो अपने फादर के जो इंटेंशंस है अपना पूरा वेल्थ फिर से रिटर्न पाने के लिए, और पाने के बाद भी फर्नेस को बर्बाद करना, ये जो उसका इंटेंशन था, उसको सपोर्ट करने के लिए वो कहीं ना कहीं पे बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से उसको सपोर्ट करती है, उसके रॉन्ग इंटेंशंस में भी, अपने फादर के रॉन्ग इंटेंशंस में भी। तो ये बात हमें समझ लेनी है। अब जो एक्ट 3 है उसमें हमें एक नया कैरेक्टर दिखाई देता है, और वो है बेलामीरा का। बेलामीरा का जो कैरेक्टर है उसके साथ एक पिंप भी है, पिलिया बोर्जा, who decide that they will steal some of Barabbas's gold since their business has been in slack. So इथेमोर जो है, इथेमोर का कैरेक्टर जो है यहाँ पे हमें ये दिखाई देता है कि इथेमोर का कैरेक्टर जो है वो एक स्लेव है जो बराबस ने खरीद लिया था, और उसका यूज यहाँ पे बराबस ने बहुत ही अच्छी ढंग से किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इथेमोर जो है वो ही फॉल्स इन लव विद बेलामेरा। बेलामेरा एक प्रोस्टिट्यूट है, और उसके तरफ ये अट्रैक्ट हो जाता है इथेमोर, और उससे प्यार करने लगता है, या फिर ही फॉल्स इन लव विथ हर। और मथियास जो है, both of them had Matthias and Lodovic had killed each other in the duel, which had been orchestrated by Barabbas. और ये जो था वो देख लिया था कैथरीन और फर्नेज ने ये जान लिया था कि ये जो पूरा लोडोविक और मथियास के दोनों में जो ड्यूएल हो चुका था
वो एक्चुअली इसने ही करवाया था, बराबस ने और इथेमोर ने। तो ये जान गई थी मथियस की मदर कैथरीन, और इसके लिए वो अपने बेटे के मर्डर का रिवेंज लेना चाहती है बराबस से। तो अब वो फर्नेस के साथ हो जाती है। और एक बात भी मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि इथेमोर जो है, जो कि स्लेव है बराबस का, तो उसे सब पता था कि बराबस ने ही लोडोविक और ये जो मथियास है उन दोनों में ड्यूएल करवाया था, और दोनों का उसमें एक दूसरे को वो इस ड्यूएल में जान ले लेते हैं एक दूसरे की। तो ये बात जब इथेमोर एबिगेल के सामने डिस्क्लोज करता है तो वो बहुत ही दुखी हो जाती है, और वो जाके एक फ्रायर जो है जैकोमो नाम से, तो उन्हें कहती है कि शी वांट्स टू बिकम अ नन। She was quite enraged, and she decides that she will become the nun. अब यहाँ पे पहले हमें ये बात समझ लेनी है कि पहले एक बार भी वो कॉन्वेंट में एंटर कर चुकी थी, जहाँ पे उसने झूठ बोला था कॉन्वेंट में एंटर करने के लिए, that she wanted to become the Christian, and in order to smuggle the wealth of her father from the convent, she actually had entered into the convent. सो ये बात हमें यहाँ पे समझ लेनी चाहिए। और ये सेकंड टाइम है जहाँ पे वो जो जैकोमो को बोलती है कि शी अगेन वांट्स टू बिकम द नन एंड एंटर द चर्च। सो ही इंस्ट्रक्ट्स इथेमोर टू डिलीवर द फूड। अब यहाँ पे जो बराबस है उसे ये जो बात थी वो उसे अच्छी नहीं लगती है कि अपनी बेटी जो है वो नन बनने जा रही है। उसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि द फैक्ट दैट द क्रुएलिटी ऑफ हर फादर वाज डिस्क्लोज्ड इन फ्रंट ऑफ हर, एंड इट hurt her a lot. That is the reason why the decision of becoming nun had been taken by her. और यहाँ पे हमें और एक बात जाननी है कि when she had decided that she will become the nun after converting her as a nun, she had confessed in front of Giacomo and Bernardine that her father had played the trick in which the duel had happened between Lodovic and Matthias, and both of them killed in each other in that duel. So ये जो बात थी, अब जैकोमो और ये बर्नार्डाइन जो दो फ्रायर्स हैं, इन्होंने जान ली थी। अब ये जो दोनों लोगों ने ये जो बात जान ली थी, तो इन दोनों को बराबस कैसे जिंदा छोड़ सकता है। तो इसके लिए वो अगेन ही प्लेज वन ट्रिक, एंड इन दैट ट्रिक व्हाट ही हैड डन, ही अगेन हैड टेकन द सपोर्ट ऑफ हिज डॉटर अबेगिल, एंड ही सेज टू हर। अब वो क्या करता है कि अबिगल अब एक नन बन गई है, तो वो उसका सपोर्ट ले लेता है, और वो जो ट्रिक प्ले करता है उसमें वो जो फूड है, राइस जो नन्स के लिए बनाया गया है, उसमें पॉइजन मिला देता है, और वो पॉइजन मिलाया हुआ राइस जो है वो सब नन्स के लिए वो कॉन्वेंट में भेज देता है। और उसको खाने के बाद जो है पूरी नन्स जो है वो मर जाती है। ऑल ऑफ देम हैड डाइड, एंड Abigail was quite aware of that fact. She also ate that rice, and she was about to die, but she had confessed all the things, the death of Lodovic and Matthias in front of Jack. Anti-Semitism, हिपोक्रेसी, ये कुछ जो है रिवेंज, ये कुछ जो है थीम्स है यहाँ पे। हिपोक्रेसी की एक थीम यहाँ पे हमें दिखाई देती है। एंटीसेमिटिज्म की एक थीम है जिसमें कि हमें दिखाई देता है कि एक क्रिश्चियन सॉरी जो माल्टीज है या फिर जो जूस है, दे एक्चुअली हेड टू द क्रिश्चियनिटी, और इसकी वजह से ही इथेमोर और बारबस ने जो कुछ भी ट्रिक्स प्ले की हुई है उनकी वेल्थ जमा करने के लिए, रिटर्न पाने के लिए, या फिर उसे सिक्योर करने के लिए, तो वो सभी जो थी
वो एंटीसेमिटिक थी। Barabbas, its target is not only Barabbas, but all the Jews of Malta and its practitioners, not only the Christian rulers of the island, but also the Muslim Turks. So, ये बात हमें यहाँ पे समझ लेनी है. Barabbas is acutely conscious of being not only despised of despised but socially and financially oppressed. On the other hand, he is intensely proud of his cunning ability to overcome his obstacle by amassing wealth and tricking his enemies. तो और एक बात है पॉलिसी की, तो पॉलिसी क्या है, उसने जो पॉलिसी यूज की थी अपनी वेल्थ सिक्योर करने के लिए, रिटर्न पाने के लिए और उसे बढ़ाने के लिए, जो कुछ भी उसने पॉलिसी यूज की थी, पॉलिसी टू हिज एक्शंस थ्रू आउट द प्ले. To the first Jew, for example, he declares that it is the Maltese government's policy that lies at the core of Maltese officials' demands to take his property, wealth, sheep, and home. Soon afterwards, he exhorts his daughter Abigail, "Be ruled by me. For in extremity, we ought to make bar of no policy." In short, policy is a euphemism for self-interest. Self-interest की policy उसने secure की थी throughout the play. उसके लिए चाहे उसने अपने बेटी को ही एक मोहरा बना लिया था और उसके थ्रू पता नहीं कितने लोगों की उसने जान ली है. लोडोविक हो, मथियास हो, नन्स हो या फिर और जैकोमो हो, बर्नार्डाइन हो, ये सभी को मारने में उसने अपने बेटी का सपोर्ट लिया था और उसने अपना सेल्फ इंटरेस्ट जो था वो सिक्योर कर लिया था. तो ये बात हमें यहाँ पे समझ लेनी है. उसकी जो पॉलिसी थी वो एक बहुत ही गलत तरीके से उसने मैकियावेलियन प्रिंसिपल्स यहाँ पे फॉलो किए हुए हमें दिखाई देते हैं. तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये वीडियो जो है ये देखने के बाद या सुनने के बाद आपको ज्यू ऑफ माल्टा के मेन कैरेक्टर बैराबस, जो कि बहुत ही इविल तरीके से हमें यहाँ पे दिखाई दिया है या फिर प्रेजेंट किया हुआ है क्रिस्टोफर मार्लो जी ने. तो आपको ये इसकी समरी और इसके थीम्स जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे. अगर आए हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.